Hello friends, good evening to all of you. At first, अपलोड किए थे। हाँ I am sorry for late because due to high speed storm, my Bijli connection from main wire pole to house get disconnected and mobile is quietly discharged. As you know, we have to read new chapter, chemical kinematics. At first, we should know what is chemical kinematics. The word kinematics is derived from Latin word kinesis, means motion or movement. Hence, other word chemical is derived from chemistry, the branch of science. Good evening, Pathak sir. The branch of science which deals with us preparation, property and uses of elements and compound. For preparation, that mechanism used are called chemical reaction, and definition of chemical kinematics is the branch of chemistry which deals with us about rate of chemical reactions, factors affecting the rate of chemical reactions and mechanism of it in terms of experimentally and theoretically is called chemical kinematics. The branch of chemistry which deals with us about the rate of chemical reactions and factors which affect the rate of chemical reaction, including mechanism of it, along with experimentally and theoretically, is called chemical kinematics. गुड इवनिंग आशीष जी, आपसे गुजारिश है कि आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे होंगे 12 के, चाहे वे जहां पढ़ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन हिंदी मीडियम सुबह 7 बजे और इंग्लिश मीडियम शाम में 5 बजे केसीसी कौशल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाने का कष्ट करेंगे जब तक लॉकडाउन और कोचिंग का संचालन प्रारंभ नहीं होता है, चाहे बच्चे जहां का हों। और जो भी 12 का बच्चा आपके संपर्क में है वो मकनपुर का है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप उनको स्पेशली मैसेज करेंगे कि ऑनलाइन क्लास का लाभ घर में बैठे उठाएंगे। ये था केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है। अब जो दूसरा टर्म इस केमिकल काइनेमेटिक्स के साथ आता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेमेटिक्स। We know that any person for surviving in this universe there are 3 basic requirements: food, house and cloth. Roti, kapra and makan, which constituent more than 80% is derived from chemistry under chemical reaction. Thus we can say that all chemical substances required for us surviving is obtained from chemical kinematics. ये था केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है। गुड इवनिंग विपुल सर। और इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। अब 40 मिनट जो इस चैप्टर का थॉट है, यह चैप्टर हमको रासायनिक प्रतिक्रिया की गति, उसके प्रभावित करने वाले कारक और इसके गतिविधि को आते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन
on the basis of rate of chemical reaction. There are three type of chemical reaction on the basis of rate. First, chemical reaction having fast reacting rate. Such type of chemical reaction which has very little time required to complete, means the chemical reaction occurring very fast in about 10 to the power minus 3 seconds only are known as fast chemical reaction. For example, combustion, neutralization and precipitation. These are three types of chemical reaction, generally including in fast rate reaction. It occurs only in ionic reaction. For example, neutralization, we know that the chemical reaction when any acid, strong or weak, react with any base, strong or weak, salt and water is formed. That reaction is called neutralization reaction. For example, NaOH reacts with HCl, produced NaCl and H2O. We write it in chemical equation NaOH plus HCl arrow NaCl plus H2O. ये था एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन का. दूसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. The chemical reaction in which two liquids, two aqueous solution are mixed among themselves, a solid gets separate out, called precipitate, and this reaction is called precipitation. For example, AgNA3, aqueous solution of AgNA3 mixed with aqueous solution of NaCl, a white curdy precipitate AgCl is formed, remaining NaNA3 aqueous solution in it. Thus, we can write it AgNO3 plus NaCl arrow AgCl downward direction में arrow लगा रहेगा, means precipitate plus NaNO3. This is the example of precipitation reaction. Combustion, it is also a chemical reaction. It is always oxidizing and exothermic reaction. The chemical reaction in which any combustible substance produced heat and light after burning is called combustion. There are three necessary conditions for combustion: presence of combustible substance, presence of supporter of combustion, and attainment of ignition temperature. For example, when methane burns in presence of oxygen, CO2 and H2 is formed. CH4 plus 2O2, arrow CO2 plus 2H2. These are the examples of fast chemical reaction. Second, slow chemical reaction. The chemical reaction which occurs very slowly. It takes times to complete, many days, months and years. For example, rusting of iron. Reaction between hydrogen and oxygen in absence of catalyst are the example of slow reaction. This type of reaction is not studied in chemical kinematics, and fast chemical reaction also not studied in chemical kinematics. Third type of chemical reaction is moderate chemical reaction. The chemical reaction whose reacting rate is not so slow and not fast remains normal. This type of chemical reaction is always studied in chemical kinematics. For example, decomposition of H2O2. 2H2O2, arrow 2H2O
plus O2. Decomposition of ammonium nitrite, NH4 NO2 arrow decompose into 2H2O and N2. Hydration of cane sugar juice, C12 H22 and O11 plus H2O arrow C6H12O6 plus C6H12O6, in which one is glucose and other is fructose. These are the example of moderate chemical reaction, normal rate chemical reaction. This type of reaction is studied in two terms respect to two properties. First, properties. Second, first qualitative, second quantitative. Qualitative terms reaction are generally studied: change in pH, change in color, elimination of reactant, presence of product. These properties are studied in chemical kinematics for studying normal chemical reaction. Second, qualitative. The reaction studied with respect to the change in concentration, amount concentration of reactant and concentration of product. In any chemical reaction, generally the concentration of reactant get decreases and concentration of product get rises. Or quantitative reaction reading generally written as R equal to change in concentration by change in time. We write equal sign below equal sign, and can write we R means rate of reaction equal to negative sign decrease in concentration of reactant by required time. Again I write equal sign below it, or concentration, change in concentration of product, increase in concentration of product but a required time, or rate of eliminating concentration of reactant, or rate of increasing concentration of product. These are the equation for studying moderate chemical reaction with respect to qualitative. Quantitative, not qualitative. Qualitative studied as change in color, change in pH, rate of change in product and reactant, means elimination of reactant and presence of product. ये था केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है, और केमिकल काइनेमेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है और उसका कौन सा एग्जाम्पल है। अब जो बातें हमारे सामने आता है, क्वांटिटेटिव में कंसंट्रेशन के से रिलेटेड टर्म का स्टडी होता है, और कंसंट्रेशन हम लोग सॉलिड स्टेट नॉट सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड concentration. Here we have to read molar concentration. In the unit volume of reacting mixture, maximum amount of solute, maximum amount of substance present in it is called molar concentration.
जी, आप कॉपी लेकर बैठेंगे और ये चैप्टर 4 है, रासायनिक गतिकी। आप घर में किताब के टॉपिक को स्टडी कर प्रॉब्लम नोट करके रखिएगा। बोर्ड की जहाँ तक व्यवस्था है, लॉकडाउन जब तक समाप्त नहीं होता है उसमें हमको एक स्टैंड लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं किसी दुकान में वो स्टैंड ले नहीं सकता हूँ। और जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ट्राई किया था नवोछिया में, जब तक कर्फ्यू नहीं था तब यहाँ वो स्टैंड उपलब्ध नहीं है और कहीं जाने आने का बंदिश है, इसलिए वो थोड़ा उसके लिए मैं क्या बोलूँ, पॉसिबल नहीं है। स्लो की बात रही, मैं एक बात को 3 बार बोलता हूँ। आप कॉपी लेके तो बैठे हैं, आपको लगेगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में सब माथे में के ऊपर से जा रहा है, ये आप इसलिए फील कर रहे हैं। रोज ही आप घर बताएंगे कहाँ हैं, और इस फीलिंग का रीजन यही है कि आप बुक से नाता नहीं रखे हैं। बुक से कंसल्ट रहिए, बुक के टॉपिक को पढ़ के आइए। मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक को लूँगा और एक बात को 3 बार 4 बार बोलूँगा। इसके बाद भी आपके समझ में कोई बात नहीं आएगी तो आप जैसे मैसेज लिख रहे हैं ऐसे मैसेजिंग करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा, देन एंड देयर मिल जाएगा। आपके सलाह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप प्लीज़ अपना घर लिखेंगे। रूह जी, जिनको माथे के ऊपर से जा रहा है उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ। माथे से ऊपर से नहीं जाए, माथे में घुसे, यही तो केसीसी का करिश्मा है, यही तो केसीसी का देन है, यही तो केसीसी का फंडामेंटल राइट है। आपके माथे में घुसाना मेरा कर्तव्य है। कैसे घुसेगा, आपको सलाह दी गई। आप बुक से टॉपिक को लर्न कर प्रॉब्लम खोज कर रखेंगे और जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप उस प्रॉब्लम को मैसेज करेंगे। माथे के ऊपर से नहीं जाने देंगे, माथे के भीतर करने का मैं कष्ट करूंगा, जो मेरी एबिलिटी है। आप अपना घर मैसेज करेंगे कहाँ हैं, क्योंकि क्या, कुछ नहीं, जहाँ है अच्छा है। ठीक है, वॉचिंग के लिए आपको धन्यवाद। आप अपना घर का मैसेज कर दीजिए। बातें हो रही थी कि अभी तक हम लोग जान रहे थे केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है, और केमिकल काइनेमेटिक्स में यानी रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है उसका कौन सा एग्जाम्पल है। और केमिकल रिएक्शन में जो बातें पढ़ाई जाती है वह है हमारे रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट सब्सटेंसों के प्रोडक्शन के लिए, जो भी हमारे रिक्वायर्ड का मटेरियल है उसके बनाने के लिए केमिकल काइनेमेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका मर्यादा है, इसकी मात्रा है। बिना इसके हमारे रिक्वायर का कोई सब्सटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि यही थॉट है, यही मैकेनिज्म है जो किसी भी सब्सटेंस के बनने का जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म को, उसके रेट को और उसके इफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है जो उसको बढ़ाएगा या घटाएगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, इस तथ्यों को पढ़ाता है। तब जो चीज़ हमको बनाना होगा, यदि उसके लिए कोई फैक्टर अनफेवरेबल है तो फेवरेबल में लाने का भी उपाय बहुत सारे साइंटिस्ट का दिया हुआ है। वो बातें आगे आएगी जब हम आएंगे फैक्टर पर। अभी तो सिर्फ हम लोग जाने हैं केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है और इस आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। आपका सलाह है थोड़ा स्लो, तो लीजिए मैं स्लो फिर से इसको रिपीट करता हूँ। आप गौर से मेरे वाचिंग क्लास में जुड़े रहिए। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स। वी शुड नो एट फर्स्ट व्हाट इज केमिकल काइनेमेटिक्स। Kinematics word is derived from Latin word kinesis, means motion or movement. Hence we can say that the branch of chemistry which deals with us rate of chemical reactions, factors affecting it, including mechanism of this with respect to experimentally and theoretically is called केमिकल काइनेमेटिक्स। अब यहाँ एक वर्ड है केमिकल रिएक्शन क्या है। चूँकि माथे के ऊपर से जा रहा है इसलिए आप माथे के ऊपर नहीं जाने दीजिए, आप ये पहले ये जानिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
the reaction which is responsible for a permanent change. The reaction which is responsible for a chemical change. अब chemical change क्या होता है? The process of changing, the mode of changing in which product can't be reversed into reactant by reversing condition is called chemical change. The reaction which is responsible for bringing a chemical change in any substance is called chemical reaction. ये था chemical reaction क्या है. For example, curdling of milk, दूध से दही बन जाए. दुनिया का कोई मशीन, कोई ताकत, कोई तरीका नहीं है जो दही से दूध बना देगा. Ripening of fruit, फल पक जाए. और अभी रामायण सीरियल चल रहा है, आप देखते हैं कि धरती का कुलंगार भी साधना करके, तपस्या करके किस किस वर को ले लेता है कि भगवान को भी अचंभे में डाल देता है. तो उस प्रकार की भी कोई तरकीब हम अपनाएंगे. हठ योग भी हमारे भारत में है, क्योंकि भारत में तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों काम करता है. और अभी नहीं, आदिकाल से, सतयुग से ही यहाँ ये एप्लीकेबल है. इसलिए उस तरह का भी कोई तरीका हम अपना लेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में नहीं ला सकते हैं. यानी पके हुए फल को कच्चा फल नहीं बना सकते हैं. तो ऐसा चेंज जहाँ भी होगा दुनिया में, कंबसन ऑफ फ्यूल, पेपर, वुड, कोल, किसी को जला दें और फिर कहें हे भगवान कोयला बन जा, लकड़ी बन जा, तो बनने वाला नहीं है. ऐसे चेंज का नाम परमानेंट चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है. और जो भी रिएक्शन इसको करने के लिए, इसको कराने के लिए जवाबदेह है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. हमें इस चैप्टर के द्वारा सिर्फ पढ़ाया जाता है केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है और उस रेट को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, उस रिएक्शन के होने का मैकेनिज्म क्या है. इस रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन 3 प्रकार का होता है. पहला है फास्ट केमिकल रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन which occurs very fast. The time required to complete a fast reaction in about 10 to the power minus 3 second means 1/1000 times of a second. 1 सेकेंड का 1000वां भाग सोच सकते हैं कितना कम है. Due to fast rating, this type of reaction is not studied in chemical kinematics. This reaction occurs only in ionic manner, means ionic reaction are very fast. For example, neutralization, precipitation, combustion. These 3 types of reaction are fast rate reaction. For example of neutralization, we know that when base reacts with acid, salt and water is formed. This reaction is called neutralization reaction. Here NaOH reacts with HCl, produced NaCl and H2O. Second, precipitation reaction. The definition of precipitation reaction is when 2 aqueous solution are mixed among themselves, a solid gets separate out is called precipitate, and the complete phenomenon is called precipitation reaction. The chemical reaction in which 2 aqueous solution are mixed among themselves, a solid gets separate out is called precipitate, and this complete phenomenon is called precipitation reaction. For example, AgNO3 plus NaCl, एरो AgCl डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा रहेगा, प्लस NaNO3 in aqueous state. Third, combustion, the process, the mode of process, the mode of reaction in which any combustible substance produced heat and light after burning is called combustion. For example, CH4 plus 2O2, arrow CO2 plus 2H2O. These are the example of fast rate reaction which are not studied in chemical kinematics. Second,
slow rate chemical reaction. This type of reaction also not studied in chemical kinematics. The chemical reaction which occurs very slowly. It takes to complete time in about many days, many months and many years. This is why this type of reaction is also not studied in chemical kinematics. For example, गुड इवनिंग रविशंकर जी, अभी कहाँ हैं आप? तो बहुत पुराने मेरे छात्र हैं। आपके इलाके में कोई भी बच्चा 12 का होगा, उनको आप मैसेज देने का कष्ट करेंगे ऑनलाइन, हिंदी मीडियम में सुबह 7 बजे और अंग्रेजी मीडियम में शाम में 5 बजे केसीसी केमिस्ट्री क्लासेस नगोचिया के द्वारा फेसबुक पर ऑनलाइन क्लास लिया जाता है। वे अगर मेरे लिंक में नहीं है तो लिंक में जुड़ जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी हैं आप मैसेज करिए, आप कहाँ हैं, अभी क्या कर रहे हैं। ये था स्लो रेट रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विदाउट कैटलिस्ट होता है। तीसरा है मॉडरेट रेट कंटेनिंग रिएक्शन, मध्यम दर प्रतिक्रिया। The chemical reaction whose rate is not very fast nor very slow means is the rate in normal condition. This is why this type of reaction is studied in chemical kinematics. For example, decomposition of H2O2 hydrogen peroxide, 2H2O2 arrow 2H2O plus O2, decomposition of पूर्णिया में हूँ। क्या कर रहे हैं पूर्णिया में? इतना नजदीक में फिर भी कभी भेंट और बात नहीं होती है। रवि जी पूर्णिया में क्या कर रहे हैं? ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड का, NH4NO2 एरो बनेगा 2H2O plus N2। तीसरा एग्जाम्पल है मॉडरेट रिएक्शन का, हाइड्रेशन ऑफ कैन शुगर का। कैन शुगर मीन्स चीनी, फार्मूला होता है C12H/O11, C12H/O11 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक को ग्लूकोज दूसरे को फ्रक्टोज कहते हैं, बोथ आर आइसोमर टू अदर। ये था मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब जो मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी केमिकल काइनेमेटिक्स में होता है वह होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन। पूर्णिया में कौन यूपीएससी होता है? किस कोचिंग का हेल्प ले रहे हैं कि किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं? बताइएगा इन डिटेल, बाद में बात करिएगा क्लास के बाद। तो केमिकल काइनेमेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ाता है। अब जो क्वेश्चन होना चाहिए वह होना चाहिए व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और इन व्हिच टर्म विथ व्हिच रेस्पेक्ट इट इज स्टडीज। यदि यही सिर्फ पूछा जाए हमको व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जवाब देंगे क्लास ओवर होने के बाद बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बातें थी कि केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन रेट क्या है। रिएक्शन रेट का डिफिनीशन है चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम of reactant and product is called rate of chemical reaction. The change in concentration of reactants and product in any chemical reaction during unit time means 1 second
is called rate of chemical reaction. Rate of reaction is studied with respect to qualitative and quantitative. Qualitative where these are studied with respect to change in color, change in pH, elimination of reactant, presence of product. Quantitative, rate of reaction, change in concentration in unit time. If rate of reaction is represented by R, hence we can write it R equal to change in concentration by change in time, or change or decrease in concentration of reactant but time required, or increase in concentration of product by time required. Third, rate of elimination of reactant, rate of elimination of concentration of reactant, or rate of presence of concentration of product. ये था रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और यह किस रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मोलर कंसंट्रेशन को जानना जरूरी है. हालांकि कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े, वहाँ हमने पढ़ा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड concentration of that solute, that solution. Here molar concentration, the mass of substance present in unit volume of reaction mixture is called molar concentration. The mass of substance present in unit volume of reacting mixture is called concentration. It is represented by capital bracket, capital slash. If we write concentration of sodium, we write Na, symbol of sodium, closed with big bracket. That represent the concentration of sodium. If we want to represent concentration of hydrogen, S2 is written in between big bracket, is represent concentration of hydrogen. Molar concentration, the mass of substance present in unit volume of reacting mixture is called molar concentration, and rate of reaction is directly proportional to molar concentration because it is also called active mass, and active mass is also represented between big bracket. For this, Gullberg and Bage, who belongs to Norway country, gave a law called law of mass action. According to it, we can say that the reaction rate of any substance is directly proportional to its active mass or molar concentration, is called law of mass action given by Gullberg and Bage, whom were belongs to नॉर्वे कंट्री. ये था लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, और केमिकल रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का उसके मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यही था रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और ये किन पदों में पढ़ा जाता है. जो बातें अब आगे कल हमको पढ़ना है वह पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है और इसके इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन है. चूँकि सर के ऊपर से जा रहा है रूह जी को और दाल में कुछ काला है. आप अपनी बात तो लिखते हैं लेकिन मैं जो कहता हूँ उसका कोई परवाह नहीं है. खैर कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सलाह दिया, सजेस्ट किया, ये अच्छी बात है. जब सब कुछ ऑनलाइन में ही हो जाएगा
तो ऑफलाइन का क्या होगा, इसको भी कभी सोचा कीजिए, कभी दिमाग में इसको भी बैठाइएगा। ये तो मुफ्त सेवा आपको मिल रही है, परिस्थिति कुछ ऐसा है। और केसीसी केमिस्ट्री नोगुचिया का एकमात्र गोल होता है, आई ऑलवेज थिंक अबाउट योर गोल। आपके लक्ष्य को हमेशा मैं परिलक्षित करता हूँ। आप अच्छा कैसे करेंगे, इसी सोच में मैं रहता हूँ। इसीलिए इस लॉकडाउन और कर्फ्यू में भी आपको अनवरत विगत 20 दिनों से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका और ये 4था चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है। लेट भले हो सकती है, कोई की रीजन उसका हो सकता है, लेकिन पर डे संडे रहे कि मंडे नियमित सेवा मिल रही है। और आपकी लगन अगर सच्ची होगी तो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। आप सीख जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा, वो दिमाग के भीतर घुस जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए गुड इवनिंग प्रोवाइड करता हूं। और आगे कल अपने समय पर हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसको आप देख कर आएंगे। वह होगा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स which affect the rate of reaction. Thank you. Good morning to all of you. जैसा कि हम लोगों को पता है, आज क्लास 12 के रसायन शास्त्र के सिलेबस के 4थे अध्याय रासायनिक गतिकी को पढ़ना है। यह जो बच्चे केसीसी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल नया अध्याय है। अतः बच्चों से गुजारिश है, वे कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और कोई भी बातें लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, देन एंड देयर मैसेज करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं पुनः तमाम दर्शकों के साथ साथ खासकर आईएससी के रसायन शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों से गुजारिश करता हूँ, वे अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। अध्याय नया है, इसके पहले जो अध्याय था 3 उसकी पढ़ाई केसीसी में हो चुकी थी, कॉपी में नोट था, आप बाद में भी देख लेते तो काम चल जाता। लेकिन अब जो चैप्टर है उसका नोट आपके कॉपी में नहीं है, नोट भी तैयार करना है और समस्या का भी सॉल्यूशन करना है। आपको लगे कि कोई बात हम नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए आप वेलकम हैं। रनिंग पीरियड में मैसेज करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। अतः तमाम दर्शकों का मैं केसीसी केमिस्ट्री क्लासेस नोगुचिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें पता है, आज 4थे अध्याय रासायनिक गतिकी को पढ़ना है और यह 2 शब्द रासायनिक और गतिकी से बना हुआ है। रासायनिक रसायन का विशेषण है और रसायन में रसायन विज्ञान से मतलब रखता है। हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा को अच्छी तरह जानते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्व और यौगिकों के बनावट, गुण और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। गतिकी जिसका अंग्रेजी काइनेटिक्स है, यह लैटिन भाषा के काइनेसिस शब्द से डिराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिस काइनेसिस का अर्थ मोशन या मूवमेंट होता है, मीन्स गति। रासायनिक गति रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर, उसे प्रभावित करने वाले कारकों तथा प्रतिक्रिया की गतिविधियों का व्यावहारिक, सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात रासायनिक गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक और प्रतिक्रिया की गतिविधियों का प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, रासायनिक गतिकी कहलाता है। इस
रासायनिक गतिकी में पहला जो अध्ययन का थॉट है वह है रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को पहले समझना। एक प्रतिक्रिया का दर, रासायनिक प्रतिक्रिया